So hello students, here is an instruction for you. While you are watching the video, you must have a pen as well as the register so that you can note down all the important things whichever is being explained by your teacher on the YouTube video. Why it is important? Because if you have a pen and register, just see one question. As soon as the question is completed, pause the video, note down this question without watching the video, then again play this. After completing the second question, the same process will be repeated. This way is going to make you perfect in this whole video, and after that you will be able to solve the question that is related to your textbook. Actually, here is an instruction that must be followed by you if you want to get perfection in the particular topic whichever is being explained here. So now let's start. तो आज बारी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की. But before understanding about the linear equation in two variable, you must have information about the coordinate geometry. Coordinate geometry has been taught in 8th standard, and this chapter is related to 9th standard. So before understanding about linear equation in two variable, you must have knowledge about the coordinate geometry. If you don't have knowledge about the coordinate geometry, you may go through the previous book or write down in the comment box so that I will make a video for you that is related to coordinate geometry. हल्का सा ब्रीफ अभी करूंगा, लिटिल बिट ब्रीफ विल बी गिवन हियर सो दैट यू विल बी एबल टू डू दिस टाइप ऑफ सम्स. तो व्हाट इज इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है. अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस, वाई वाई डैश. एंड wherever these two lines are intersecting is known as origin. So this is O, which is known as origin. After that, here will be positive and here will be negative, and you will start from this origin 0. So this is 0, then this is plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 and plus 6. And here will be minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 as well as minus 6. It can be extended further if you require that. After that, it is plus 1 and it is minus 1. Then what you can do this, you can write down this minus 1, minus 2, minus 3 in this side also, so that there will be a proper separation on that. So that will be very good. So we have to do that. So minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, then minus 6. After that, it is plus 1, it is minus 1. This is for x axis. Now for y axis, so it is what? Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Students, when you are going to solve the question in the examination time, so graph will be given you. Even if you don't get the graph, so what you have to do, draw a horizontal line and then a vertical line which is perpendicular to this line, and after that just put a dot on 1 centimeter. Put the scale here, 0 will be on this point, and after that 1 dot, 2 dot, 3 dot, like this you will draw it, and after that you will be able to plot the numbers in this form as it has been explained here. Same here, it was plus 1, plus 2, plus 3. So here will be minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, as well as minus 7 if you require. So this is a Cartesian plane in which x-axis and y-axis has been drawn. We should not forget that this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, as well as this is fourth quadrant. So fourth quadrant are here. Now if you have to plot a point whose coordinates is 3, 4. If your coordinate is 3, 4. So 3, 4 means 3 is for x abscissa and y is for ordinate, that is 4. Confirm now? So this is for x axis and this is for y axis. So positive 3 is belonging to this coordinate and positive 4 is belonging to this line. So whole is including the first quadrant. Understand or not? If here were minus 4, then what would be here? It means x is positive, that will be lie here, and y is negative, so that will be lie here. Confirm now? So this line and this line is going to state about the fourth quadrant. So this point will be on fourth quadrant. Even when here was plus 1, plus 4, so that will be 3, 4, which will lie on fourth quadrant.
So 3 comma 4. So 3 is here and 4 is here. So 3 comma 4. Sorry, 3 comma minus 4. Actually, it was minus 4. So this is the way that how to plot the points. Why I had taught about this? Because when you are going to draw the line of linear equation into a variable like 6x plus 7y is equal to 9. And you have to draw this line on the graph. So you will find out the solution of this, and this will be explained by me. These solution will be as known as the coordinates. Now you should know that how to plot the coordinate. That's why it has been taught. Because on that time, I'm not going to explain you again and again with the proper brief. Understanding or not? So this is the way that how to plot the line. So that has been taught. After that, the next thing is going on. Before starting about the linear equation in two variable, I want to suggest you that coordinate geometry concept must be clear. You should know that how to plot the points. Whenever there is any problem, what I had spoken, it has been slipped. Just repeat the video and you will be able to understand. Surely you will be able to understand. This is my guarantee. If you will watch the video properly. तो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल में सबसे पहले हम लोग देखें फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. दिस इज फर्स्ट थिंग. सो फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी, मतलब किस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन होती है. व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन. तो वो क्या होती है हमारी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इट मींस भाई ऑब्वियस सी बात है, लीनियर है तो डिग्री कितनी होगी, 1 होगी. तो x की डिग्री भी 1 है और चूंकि टू वेरिएबल है तो यहां पे दो वेरिएबल आए, एक x और एक y. तो x एंड y आर वेरिएबल and a b are the coefficient of x and y and c is the constant term. Even a b c trio are constant, but in which the variable has not been included, this is constant and these are the coefficient of x and y. So this is the general form of the linear equation. I hope you have understood. अब जो क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, मैं स्टेट कर दे रहा हूं, क्वेश्चन आप लिख लेना. आपसे क्वेश्चन उसने कह दिया कि 4/5x प्लस 7y इज इक्वल टू 9 को ax प्लस b प्लस c के फॉर्म में लिखो. ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखो. राइट द इक्वेशन दिस in the form of ax plus by plus c and find out the value of a, b and c. If you will see the video completely, so you are going to complete this video today only, and with the help of this video you are going to make you perfect in linear equation in two variable. तो एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना, जहां प्रॉब्लम हो रिपीट करके देखना. ओनली दिस इज द वे टू मेक यू परफेक्ट फॉर दिस linear equation in two variable. Each and everything will be explained but in a speed. So whenever you thought ki what has been spoken by sir and sir has leave this topic, so you have to repeat the video and you will be able to understand, because I will teach in speed. So this is 4/5x plus 7y is equal to 9. अब आपने क्या करना है कि इसको ax plus by plus c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए आप क्या करो कि पहली बार तो डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए. तो व्हाट यू हैव टू डू कि इस डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो. तो एज सून एज यू विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2, सो क्योंकि पहला क्वेश्चन जो आप में आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि राइट डाउन द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c. तो सेम प्रोसेस आपको करना है. तो आपने क्या किया, 5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया. तो इफ यू विल मल्टीप्लाई बाय 5 इन दिस, so 4 will be cancelled out by 4, so you are going to get 4x. Then when you will multiply this 5 with this one, so this is 35 by and is equal to 9 5s are 45 is here. Confirm? So denominator has been removed. This is the way to remove the denominator. What I had done, we had multiplied with the 5 in the whole equation. Now this will be transferred to that side. So this is 4x plus 35y and plus 45. Sorry, bacha, this is minus 45 and this is equal to 0. So now it has been converted in the form of ax plus by plus c. Now compare, for finding the value of a, b and c, you will compare this equation with that one. So comparing the equation, you will write down here, comparing the equation with
ax plus by plus c is equal to 0. So when you will compare that, so x, the coefficient of x is a and the coefficient of x is 4. So a is equal to what? 4. Same way, the coefficient of y is b and coefficient of y is 35. So b is equal to 35. And then coefficient of constant term is c and constant term is minus 45. So c is equal to minus 45. So this is the way that how to find out the value of a, b and c. तो ये पहली कैटेगरी हो गई क्वेश्चन की. सेकेंड कैटेगरी जो आपके पास में आती है उसके बारे में बता रहा हूं कि जैसे मैंने आपसे कह दिया कि if 2,3 is the solution of kx plus 3y minus 9 is equal to 0, then find the value of k या what is the value of k. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. या ऐसे भी बोल सकता है, इसी क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना कि if x is equal to 2 and y is equal to 3 are the solution of the equation, then find out the value of k. तो आपने कुछ नहीं करना है, kx plus 3y minus 9 is equal to 0 करना है, x की जगह पे 2 रख देना है, तो k into 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 3 रख देना है, माइनस 9 इज इक्वल टू 0. देन दिस इज 2k प्लस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. 9 विल बी कैंसिल आउट बाय 9. सो 2k इज इक्वल टू 0. देन k इज इक्वल टू ऑल्सो 0. दिस इज द वे टू हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन टर्म दैट हैज बीन गिवन अ लीनियर इक्वेशन हुज जीरोस हैज बीन गिवन. अच्छा ध्यान रखना कि ये कोऑर्डिनेट अगर ये सोल्यूशन है तो दे विल सेटिस्फाई द कंडीशन. What is the meaning of satisfying the condition? It means when will you put x is equal to 2 and y is equal to 3, so it will satisfy the given condition. It means LHS will be equal to RHS. Getting? So this is the first category of the question that has been explained. अब अगली कैटेगरी क्या आती है जरा उस पर हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें सीखते हैं. अब मैंने कह दिया तुमसे अगला क्वेश्चन है. ध्यान रखना मैं इस एक वीडियो में ही पूरी लीनियर इक्वेशन को निपटाने की कोशिश कर रहा हूं. हमसे एक क्वेश्चन दे दिया गया, ड्रॉ x इज इक्वल टू 0. पहला क्वेश्चन. दूसरा, ड्रॉ x इज इक्वल टू -2. तीसरा, ड्रॉ x इज इक्वल y इज इक्वल टू -3/2. ऐसे क्वेश्चन मतलब हमने आपको दे दिए और आपको इनको ग्राफ में ड्रॉ करना. अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये x इक्वल टू 0 तो है, इसको ये तो या तो ये दे देगा या तो दूसरी लैंग्वेज में कह देगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. मतलब सेम है, x इक्वल टू -2. इसको या तो ऐसे दे देगा या 2 को पहले इधर भेजिए 2y इक्वल टू -3, या इसको इधर भेज दीजिए. तो क्या हो गया फाइनली 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इसको ड्रॉ कर प्लॉट करना है. यू हैव टू ड्रॉ दीज लाइंस ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्लेन. तो कैसे ड्रॉ करना है ग्राफ में, तो उसको हम बताने जा रहे हैं. जरा ध्यान से सुनना बच्चे, आप जरा यहां पे ध्यान से देखो. ये y एक्सिस है. अब अगर आप यहां y एक्सिस का मतलब इस लाइन पर हो, इसका मतलब ये हुआ कि यू आर हियर एंड इफ यू आर एट दिस लाइन, इट मींस व्हाट इज बीइंग कंसीडर्ड कि नीदर यू आर गोइंग टू राइट हैंड साइड नॉर यू आर गोइंग टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस लाइन. तो इस पूरी लाइन में जैसे यहां पे देखो इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0. यहां पर x भी 0 है और y भी 0 है. अब अगर मैंने कह दिया x इज इक्वल टू 0, यानी इसी जगह पे है x इज इक्वल टू 0, लेकिन y की मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूं. y की अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि ना तो y की मैं कोई वैल्यू तो दे नहीं रहा हूं. अगर मैं y की कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि ना तो x इक्वल टू 0 हो गया और मैं y की कोई वैल्यू दे नहीं रहा हूं. तो इसका मतलब ये बात पक्की हो गई है कि y में भी कोई वैल्यू नहीं है. अच्छा जैसे मैंने बोल दिया x इक्वल टू 0, तो जरा मेरे को ध्यान से बताना सोच के, यहां पर x की वैल्यू कितनी है 0. इस पॉइंट में x की वैल्यू कितनी होगी. अब ना तो आप लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हो यानी x इधर भी नहीं ट्रेवल कर रहे हो, और ना तो इस साइड में जा रहे हो यानी x की वैल्यू इधर भी नहीं ट्रेवल कर रहे हो, यानी यहां भी x 0, यहां भी x 0 होगा -2 पे. तभी बोला जाता था, याद करो कि 0,3 किस कोऑर्डिनेट में है, 0,3 किस कोऑर्डिनेट में है, तो किस क्वाड्रेंट में है. तो ये बताया जाता था कि भाई अगर x 0 है, y की वैल्यू है तो y कोऑर्डिनेट y एक्सेस में है. और अगर यहीं पे मैं दे दूं कि -4,0, तो इस बार किसकी वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, तो ये x एक्सेस में है.
मेरी बात समझ में आ रही ना? तो जिसकी वैल्यू नहीं है उस एक्सेस में नहीं है, वो दूसरे एक्सेस में है, तो वो क्वाड्रेंट में नहीं जाता है। अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी 0 है तो वो क्वाड्रेंट में नहीं होता है, एक्सेस में होता है। जिसकी वैल्यू गिवन होगी उसी एक्सेस में होगा। जैसे मैंने कह दिया कि x, अब यही यहां पर समझना है इस चीज को कि इस लाइन पे सबसे पहले आप देखो कि इस लाइन में किसकी वैल्यू है आपके पास। तो इस लाइन में y की वैल्यू तो है लेकिन x की वैल्यू नहीं है। अगर x की वैल्यू नहीं है तो x कितना हुआ? 0। तो जब भी कभी आपसे कहता है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का मतलब वो केवल y एक्सेस के बारे में बात कर रहा है। तो जब भी आपसे कहे कि ड्रॉ द लाइन x इक्वल टू 0, तो बस इसी लाइन को दो पूरा प्रोडक्ट बना देना है और इसी लाइन पे आपको लिख देना है x इक्वल टू 0, या यहां पे लिख देना है x इक्वल टू 0। ये y एक्सेस जो होता है यही x इक्वल टू 0 होता है। y एक्सेस जो होता है दैट इज x इक्वल टू 0, इसी को x इक्वल टू 0 बोलते हैं। इसका मतलब ये बात पक्की हो गई है कि अगर मैं y इक्वल टू 0 बोल दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? x एक्सेस हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। तो अगर मैं आपसे कह देता हूं y इक्वल टू 0 तो वो x एक्सेस हो जाएगा। y इक्वल टू 0 तो ये क्या है हमारा? x एक्सेस हो जाएगा। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। तो आई होप वी हैव लर्न दैट हाउ टू ड्रॉ x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सेस, क्योंकि x की वैल्यू नहीं है तो पूरा पूरा y पे दारोमदार हो गया, तो y एक्सेस। अब y इक्वल टू 0 कह दे तो इसका मतलब x की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम y इक्वल टू 0 कह दें तो y इक्वल टू 0 का मतलब क्या? y 0 कहां पे होता है? x एक्सेस में ही तो होता है ना, तो ऊपर जाना है ना तो ये नीचे आना है, यानी y एक्सेस में मतलब अगर हमने कह दिया कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 का मतलब ना तो लेफ्ट में जा रहे हैं ना तो राइट में, यानी कि वर्टिकल y एक्सेस। अगर हम यहीं पे बोलते हैं y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि y में कुछ है ही नहीं। इसका मतलब y की वैल्यू कब आती है? जब हम या तो ऊपर जाते हैं या तो नीचे जाते हैं। तो नीदर वी आर गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन नॉर वी आर गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो द हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी नोन एज y इक्वल टू 0। आई होप दिस हैज बीन अंडरस्टूड। रिपीट करके वीडियो देख लेना अगर कहीं जाओ तो। अब x इक्वल टू -2 बोल दिया मैंने, तो x इक्वल टू -2 कहां पर है? तो अब x की वैल्यू 1 तो उसने बोली कि -2, यानी y की अभी भी कोई वैल्यू नहीं है। y की अभी भी कोई वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू कितनी है? -2, तो x की वैल्यू -2 पर पहुंची। ये है x इक्वल टू -2, ठीक, x इक्वल टू -2 हो गया। लेकिन अब x इक्वल टू -3 नहीं है, x इक्वल टू -4 नहीं, केवल x इक्वल टू -2 है। यानी अब जो भी चेंजिंग होगी, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए। x की वैल्यू -2 कांस्टेंट है एंड y की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए। इसका मतलब क्या है कि आप ऊपर तो जा सकते हो, नीचे तो आ सकते हो, लेकिन रहोगे -2 पे ही। तो इसका मतलब देखो, x इक्वल टू 0 था तो y एक्सेस था, और x इक्वल टू समथिंग है तो वो y एक्सेस के पैरेलल होगी। तो आपने क्या करना है कि -2 जहां पे पॉइंट आया था वहीं से y एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दोगे। स्ट्रेट लाइन होगी, मेरी थोड़ी कर्व हो गई है। तो दिस इज व्हाट x इक्वल टू -2। दिस लाइन इज x इक्वल टू -2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। सेम हियर इफ यू विल ड्रॉ फॉर y इक्वल टू -3/2। सो y इक्वल टू -3/2 मीन्स कि अब y में -3/2 आप ढूंढे कहां पे है? तो इफ यू विल सी y इक्वल टू -3/2, तो y इक्वल टू -3/2 का मतलब ये भी हो सकता है ना कि y इक्वल टू -1.5, एंड वेयर इज -1.5? इफ यू विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन तो दिस इज पॉजिटिव, तो नीचे आएंगे तो ये -1 है, ये -2 है, इसके बीच में ही होगा। तो हियर इज y इक्वल टू -1.5। गेटिंग और नॉट? अब इट मींस क्या है कि y की वैल्यू 1.5 कांस्टेंट है और x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, यही तो कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब ऐसी जब देखो, जब क्या था, y इक्वल टू 0 था, व्हेन देयर वाज y इक्वल टू 0 तो पूरा पूरा x एक्सेस था। तो इसका मतलब जब y इक्वल टू 1.5 होगा तो y एक्सेस के पैरेलल लाइन होगी। अप टू 12th तक काम आएगा, जब तक मैथ की पढ़ाई करोगे तब तक काम आएगा ये, तो इसलिए इसको ध्यान से समझते हुए चलना। तो जब भी कभी y इक्वल टू बोलता है तो वो x एक्सेस के पैरेलल लाइन होती है। तो यहां से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे, यस, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये है आपका y इक्वल टू 3/2। तो y इक्वल टू समथिंग x एक्सेस के पैरेलल, रट लो, और x इक्वल टू समथिंग y एक्सेस के पैरेलल। सिंपल सा कंसेप्ट है। x इक्वल टू समथिंग या तो y एक्सेस है या y एक्सेस के पैरेलल है, और y इक्वल टू समथिंग तो या तो x एक्सेस है या x एक्सेस के पैरेलल है। आई होप अप टू दिस पॉइंट वी हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। आफ्टर दैट नई चीज सीखेंगे कैसे ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करते हैं।
तो इसके बाद अभी हमने सीखा क्या कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखा था, जिसमें हमने बताया था कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 3/2 को कैसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि वो वन वेरिएबल देखा था हमने, अब हम टू वेरिएबल को देखेंगे कि इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं। तो चलो और देखें इसके बारे में। तो जैसे मैंने बोल दिया कि ड्रॉ 2x - 3y इक्वल टू 6, या तो क्वेश्चन ऐसे होगा या क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं हम लोग। इसको नोट कर लेना प्लीज, मैं बोलूंगा बस ऐसे मुंह से। तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ 2x - 3y इक्वल टू 6, ये पहला क्वेश्चन है। आगे और भी हो सकता है कि ड्रॉ द लाइन दिस ऑन ग्राफ, ये भी हो सकता है। आगे कौन से क्वेश्चन और ऐड होंगे, फर्दर एक्सप्लेन, आई विल फर्दर एक्सप्लेन दिस वन। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सोल्यूशन। तो है क्या कि 2x - 3y इक्वल टू 6 हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 + 3y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 + 3y/2। यानी कुछ नहीं करना है कि आपको एक वेरिएबल को इधर रखना है एंड द अनदर वेरिएबल विल बी शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड। It means what you have to do, you have to find out the value of one variable in the form of other। इसका मतलब ये है कि अब ये इक्वेशन आ गई, अब आप y की वैल्यू पुट करते जाओगे और उससे x की वैल्यू आती जाएगी। मान लो y की वैल्यू आपने कुछ पुट करोगे, x की वैल्यू अपने मन से आती जाएगी। चलो देखते कैसे। तो इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब आपने लिखा यहां पे when y इज इक्वल टू, अब अच्छा ध्यान रखना कि हम y की वो वैल्यू रखेंगे जिसके लिए x की कोई ना कोई वैल्यू आए, और वो भी कोशिश करना कि डेसिमल में आए तो आए, लेकिन टर्मिनेटिंग में आए। तो जैसे कि मैंने मान लो यहां पे 0 रखा, तो 3 × 0 0 हो जाएगा, तो 6/2 यानी 3 आ जाएगा। तो हमने y की वैल्यू रखी 0, तो उससे x की वैल्यू यहां पे आ जाएगी। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 + 3 × 0/2, फाइनली 6/2 दैट इज 3। कंफर्म। फिर एक और, वैसे तो लोग कहते हैं कि 2 निकाल लो, लेकिन मैं कहूंगा कि एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस मस्ट बी फाइंड आउट। ऐसा क्यों होता है ये बताएंगे हम। फिर हमने ले लिया y इक्वल टू, सपोज दैट अगर 1 रख के देखें, तो अगर 1 रखोगे तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। फिर 3 और 6 करोगे तो 9 आएगा, 9/2 करोगे 4.5 आएगा। डेसिमल में आ गया, रॉन्ग नहीं है, प्लॉट किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी अपॉन में जैसे 7 होता है तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये चीजें सोच के रखनी है। तो हम चलो एक बार 1 रख के देखें, तो रख के देखा गड़बड़ हो रहा था। तो -1 रख के देखें तो 3 आ जाएगा, वो भी गड़बड़ हो रहा था। तो 2 रख के देखते हैं एक बार। क्या रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं। तो हमने चलो रखा y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 रखने से क्या हुआ कि x इक्वल टू 6 + 3 × 2/2। तो 6 + 6/2 दैट इज 12/2 विच इज 6। और व्हेन y इक्वल टू -2 एक बार रख लो, तो x इज इक्वल टू 6 + 3 × -2/2 दैट इज 6 and 3 2 = 6 -6/2 विच इज 0/2 दैट इज 0। तो उसके हम लोग इसकी टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, टेबल। तो टेबल फॉर 2x - 3y + 6 या इज इक्वल टू 6। तो टेबल बनाई ऐसे हमने। We will draw the table, then put the values on this. This is x, this is y. Here will be the point. हाँ, कुछ लोग और भी काम करते हैं कि यहाँ पे ऐसे करके और यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं, a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे जब पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट मस्ट बी क्लियर ना, दैट्स व्हाई। So when y was 0, then what was x? 3. When y was 2, then what was x? 6. When y was -2, then what was x? 0. कंफर्म। तो अब इससे जो कंक्लूजन आया है उसे सोल्यूशन बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम पहला आंसर आ गया, solution of line is r। क्या हो जाएंगे, पहला सोल्यूशन 3, 0। दूसरा सोल्यूशन 6, 2 एंड
थर्ड सोल्यूशन आ गया 0, -2। ठीक, ये क्वेश्चन होता है। आफ्टर दैट वी हैव टू प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द Cartesian plane. That's why I had taught that before understanding about this chapter, we must have knowledge about coordinate geometry. So 3, 0 we have to recognize. So 3 is x and y is 0. So 3, 0. This is the first point, that is A. This will be first point, that is A. ध्यान रखना ये पहला point. Second point was 6, 2. It means it means x is 6 and y is 2. So x is 6 and y is what? 2. It means 2 is positive up direction. So this is the second point. This is known as B. तो 2 पॉइंट आपके आ गए। एक पॉइंट क्या आया हमारा 3, 0, एक पॉइंट आ गया 6, 2 एंड आफ्टर दैट 0, -2। अच्छा एक बात पता है, अभी हमने बोला था आपसे कि वी हैव टू फाइंड आउट एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस। व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट द 3 सॉल्यूशंस, वो मैंने कहा था आगे बताएंगे। जरा सोचो अगर 2 सॉल्यूशन होते तो होता क्या कि एक पॉइंट ये आया था और एक पॉइंट ये आया था, ये आया था। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, लाइन बन गई। ठीक, ये लाइन तो बन गई। बट आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, सही है या नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट से होते हुए तो हमेशा एक लाइन जाएगी। वेदर द पॉइंट्स आर राइट और रॉन्ग, बट लाइन कैन बी ड्रॉन। तो वेदर द पॉइंट्स आर करेक्ट और नॉट, दैट विल बी क्लियरिफाइड बाय द थर्ड पॉइंट, दैट इज 0, -2। तो 0, -2 हमने देखा, तो x तो 0 है यानी y एक्सिस में पक्का हो गया, और y -2 है तो -2 ये हो गया, कंफर्म। अब अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही जगह पे लाई करेंगे, हम मेरे में थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि मैंने ऑब्वियस सी बात है ग्राफ तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। तो ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B, ये पॉइंट था C। उसके बाद आप चाहो तो इसके ऊपर ऐसे हल्का सा सर्कल लगा सकते हो ताकि वो पॉइंट्स हाईलाइट हो जाएं। पहले से ही नहीं ऐसे गोचाकुची कर देना, बहुत गंदा लगता है। दिस इज अ शैबी वर्क, दैट शुड नॉट बी डन। तो दिस इज द वे दैट हाउ टू ड्रॉ द लाइन। उसके बाद लाइन जब आपकी बन जाती है तो उसके बाद आप इस इक्वेशन को उसके ऊपर लिख देते हैं, 2x - 3y = 6। 2x - 3y = 6, दैट विल बी राइट ऑन दिस लाइन। तो द लाइन हैज बीन ड्रॉन। ठीक, तो लगभग ये हो गया। लेकिन कभी कभी हमसे एक काम और करने को वो कहता है, वो हमसे कहता है कि शेड द एरिया विच इज बाउंडेड बाई एक्सेस एंड दिस लाइन। तो देखो एक तो ये एक्स एक्सेस है, एक ये वाई एक्सेस है, और एक ये लाइन है। उससे जो एरिया बनेगा दैट विल बी दिस एरिया। इसको प्लीज मेंशन कर लेना, मैंने 3 क्वेश्चन सिखाए हैं एक ही जगह पे। पहला क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन। सेकेंड क्वेश्चन ड्रॉ 2x - 3y = 6 ऑन ग्राफ, एंड थर्ड शेड द एरिया विच इज बाउंडेड बाई एक्सेस एंड द लाइन 2x - 3y = 6। तो इस एरिया को हमने शेड कर दिया। ये लाइन जा रही थी और ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है, ये एरिया बन गया। चौथी चीज आपसे ये भी पूछ सकता है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट शेडेड रीजन। फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट शेडेड रीजन। यू विल राइट डाउन हियर एरिया ऑफ शेडेड रीजन shaded region is equal to, अब तुम्हें पता है कि दिस इज द ट्रायंगल एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस इनटू हाइट। अब ऑब्वियस सी बात है इस जगह पे तो 90 है, तो किसी भी एक को बेस रख लो, दूसरा वाला हाइट हो जाएगा। तो 1/2 इनटू दिस इज OA, that has been taught in physics, I hope, when you have understand about the motion chapter. So there was also that type of concept when we have to find out the displacement and all. So this is 1/2 into OA into OC. So 1/2, and what is OA? OA is 1, 2 and 3. And what is OC? That is 0 to 1 and 2 place. 2 will be cancelled out by 2. So this is 3 square unit. This is the answer of this concept which should be done.
अगली पैटर्न का जो आज क्वेश्चन आता है उसमें कहता है कि ड्रॉ द लाइन फॉर दिस एंड फ्रॉम योर ग्राफ। कहने का मतलब जब ये लाइन आपकी बन जाए उसके बाद आपको y की वैल्यू निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 7, यानी जब x इज इक्वल टू 7 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, एज वेल एज जब x की वैल्यू -8 हो तो y की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले बात तो आई हैड ऑलरेडी टॉट दैट हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। तो उस ग्राफ को आप बनाओगे जैसे 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 - 3y, फिर x इक्वल टू 11 - 3y अपॉन 2, देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ y ऑन द बिहाफ ऑफ दिस, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। उसके बाद आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो मैंने 3 पॉइंट्स निकाले, 4,1 -2, 5 और एक अगला वाला पॉइंट ये हमारा हो गया है -5,6। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसके लिए ग्राफ निकाल लेना है। तो उसके जब आपका ग्राफ प्लॉट हो गया, इनको ज्वाइन करके जैसा पहले प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, फिर उसने कहा कि x इज इक्वल टू 7 पे y की वैल्यू क्या है। तो आप x इक्वल टू 7 पे पहुंचे, कहां है x इक्वल टू 7, ये है। अब x इक्वल टू 7 से आपको एक परपेंडिकुलर डालना है जो इस ग्राफ को टच करे। तो आपने क्या किया, हालांकि आपने बताया कि जब आप ग्राफ में इसको ड्रॉ करोगे तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर लाइनें बनी हुई होती हैं। लेकिन फिर भी अभी आपकी कुछ ऐसे लाइन जा रही होगी, एक सीधी सीधी ऐसे, एंड वेयर एवर इट विल कट दिस लाइन, जहां भी x इक्वल टू 7 से जो आपने परपेंडिकुलर डाला, जो लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस इज इंटरसेक्टिंग अ गिवन ग्राफ, इस ग्राफ को जहां पे इंटरसेक्ट करती है वहां से आप ये x एक्सिस से तुमने डाला है तो y एक्सिस पे आपने फिर से एक लाइन ऐसे देखी इधर को, तो कहां पे आ रही, 1 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन x इज इक्वल टू 7 तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का। दिस इज द वे टू डू। इसी तरह से दूसरा उसने बोला व्हेन x इज इक्वल टू -8, तो -8 कहां है, तो यहां तो पॉजिटिव जा रहा है, तो नेगेटिव -8 इधर होगा, तो -1 -2 -3 -4 -8 ये हो गया बच्चा। अब इस -8 से आपको फिर ऐसे ही एक परपेंडिकुलर स्केल से ड्रॉ करोगे प्रॉपरली तो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहां पे इसने इंटरसेक्ट किया, वहां से आपने तुरंत इसमें परपेंडिकुलर डाला, तो अप्रॉक्स 9 आ गया। तो इसका मतलब when you will draw check on the graph, तो when x is equal to -8 is here, तो y की वैल्यू कितनी ऑब्जर्व हो रही है, 9। तो इस तरह से आपको करना होता है। ये एक दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन है। इसी में एक चीज और इंक्लूड कर लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ी सी आराम हो जाए। कभी कभी कहता है कि if a was -2,5, if a was -2,5 and b was the image of a on y एक्सेस, इसका मतलब क्या है, y एक्सेस पे इमेज बनानी है तो y एक्सेस मिरर का काम करेगा। और आपने प्लेन मिरर 8th में पढ़ा है रिफ्लेक्शन चैप्टर में कि कोई ऑब्जेक्ट मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे होता है जितनी डिस्टेंस में उसकी, कोई ऑब्जेक्ट की इमेज उतनी ही डिस्टेंस में होती है जितनी डिस्टेंस में वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये -2,5 पे है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस -2 है, तो इधर भी -2 ही डिस्टेंस होगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 हो जाएगा और 5 ऐसे ही रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी y एक्सिस के साथ आपको इमेज बनाने को कहता है तो वैल्यू ऑफ x विल बी चेंज, वैल्यू ऑफ y वोंट बी चेंज्ड। तो ये पॉइंट मान लो हो गया, ये a ऑब्जेक्ट था और I इमेज हो गई, I उसकी इमेज हो गई। तो कभी कभी कहता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा 2 यूनिट इधर है और 2 यूनिट इधर है, तो 2 और 2 4 यूनिट, क्योंकि -2 ये है और 2 ये है, तो 4 यूनिट। तो AI इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 यूनिट। इसी तरह से अगर वो कहता कि इफ I dash is the image of A on x एक्सिस, इसका मतलब इस बार क्या है कि जब x एक्सिस पे इमेज आपको बनानी है तो इस बार किसकी वैल्यू चेंज होगी कि ये नीचे आ जाएगा, तो इस बार x की वैल्यू नहीं चेंज होगी, y की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही होगी, कंफर्म है ना। तो ये ही -2 ही रहेगा, लेकिन x की वैल्यू +5 से कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू -5, तो ये कितना हो जाएगा -2,5। अब इसकी डिस्टेंस कितनी होगी I डैश, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ध्यान रखना कभी कभी यहां एक क्वेश्चन और पूछता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम x एक्सिस। तो जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी वो क्या है, x ही तो है, तो जो -2 है, तो 2 यूनिट ये इसकी डिस्टेंस है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम x एक्सिस, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये क्या है, डिस्टेंस दिख तो ऐसे जाएगी x पे जा रही है लेकिन एक्चुअली ये y यूनिट को बता रही है, तो y यूनिट कितना था 5, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी 5 यूनिट आपकी। अंडरस्टैंड। तो दिस इज द वे दैट हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। अब इस तरह से अगर टोटल डिस्टेंस बोली जाएगी तो 5 ये और 5 ये टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई, 10 यूनिट डिस्टेंस इज
here. So that has been understood. I hope you have understood. ठीक है, कब बहुत पूछा जाता है कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो निकाल लेंगे. तो I hope that I had completed this whole chapter and you had enjoyed it. But this will be make you perfect only in the condition when will you practice a lot for this. Try to concentrate on each and every point that has been explained here. कहीं कोई डाउट होता है, try to repeat the video, do that type of sum from your textbook, and then you are going to make you perfect. This is the way. Thank you.